महाप्रभु एक्चुअली लीला लीला में जो है, जब भागवत पढ़ते थे, भागवत में जो लीला है उसमें एकदम से उस लीला में प्रवेश कर जाते थे और बीच-बीच में वैसे गोपी-गोपी बोलते थे, क्योंकि महाप्रभु उस भाव भाव के उस स्टेज में हैं। है ना? स्वयं भगवान हैं और भक्तों की जो जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आचरण कर रहे हैं, तो भक्तों का सबसे सर्वोच्चम भक्तों का जो पराकाष्ठा होता है, जो भक्ति में भगवान की लीला में प्रवेश कर जाते हैं, उस स्टेज का दिखा रहे हैं ना महाप्रभु। और उस स्टेज में जो है लोग उनको समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे गोपी-गोपी कर रहे हैं, है ना? ऐसे नहीं करना चाहिए। साधन दृष्टि में है, तो वो जो है एक शिष्य ने उनको करेक्शन किया और महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया और महाप्रभु जो उस शिष्य के पीछे भाग लिए हैं, तो और वो शिष्य भी एक टोल पे जाते हैं और बाकी लोग उसे बोलते हैं और वो लोग भी बहुत नाराज़ होता है, महाप्रभु को मारने के लिए तैयार होता है कि महाप्रभु अगर कैसे करेंगे? और महाप्रभु की निंदा भी करने लगे, शायद भगवान की निंदा कर रहे थे, क्योंकि वो लोग महाप्रभु को समझ ही नहीं पा रहे थे, है ना? तो आगे पढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। প্রভুরা নিন্দয় সবরা বুদ্ধি হইল নাশ, সুপথিতা বিদ্যা কর না হয় প্রকাশ। When all the students thus resolved, criticizing Sri Chaitanya Mahaprabhu, their intelligence was spoiled. Thus, although they were learned scholars, because of this offense, their sense of knowledge was not manifested in them. Purport, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. In the Bhagavad Gita, it is said, Mayaya prahrita jnana ashuram bhavam ashritaha. When one becomes inimical to the Supreme Personality of Godhead, adopting an atheistic attitude, ashuram bhavam, even if one is a learned scholar, the essence of knowledge does not become manifested in him. In other words, the essence of his knowledge is stolen by the illusory energy of the Lord. In this connection, Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur quotes a mantra from the Shvetashvatara Upanishad 6.23, Yasya deve para bhaktir yatha deve tatha guru tashyate kathita hi arthaha prakashante mahatmanaha. The purport of this verse is that one who is unflinchingly devoted to the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, and similarly devoted to the spiritual master with no ulterior motive, becomes a master of all knowledge. In the heart of such a devotee, the real essence of the Vedic knowledge becomes manifested. This essence is nothing but surrender unto the Supreme Personality of Godhead. Vedescha sarver aham eva vede. Only unto one who fully surrenders to the spiritual master and the supreme Lord does the essence of Vedic knowledge become manifested, not to anyone else. This same principle is emphasized by Srila Prabhupada Maharaj in Srimad Bhagavatam 7.5.24. Iti pumsarpita Vishnu bhaktischena nava lakshana kriyate bhagavati adhaha tan manye aditam uttamam. A person who directly applies these 9 principles, hearing, chanting, remembering, etc., in the service of the Lord, is to be understood as a greatly learned man who has assimilated the Vedic literatures very well. For the goal of studying the Vedic literature is to understand the supremacy of Lord Sri Krishna. Sridhar Swami confirms in his commentary that first one must surrender to the spiritual master, then the process of devotional service will develop. It is not a fact that only one who diligently pursues an academic career can become a devotee. Even with no academic career, if one has full faith in the spiritual master and the supreme personality of Godhead, he develops in spiritual life and real knowledge of the Vedas. The example of Maharaj Khatwanga confirms this.
One who surrenders is understood to have learned the subject matter of the Vedas very nicely. One who adopts this Vedic process of surrender learns devotional service and is certainly successful. One who is very proud, however, is unable to surrender either to the spiritual master or to the Supreme Personality of Godhead. Thus, he cannot understand the essence of any Vedic literature. Srimad Bhagavatam 11.11.18 declares, Shabda Brahmani Nishnato na Nishnayat Parayadi Sramastasya Shramat Phalo Hiyadhimi Numa Iva Rakshataha. If one is learned in the Vedic literature but is not a devotee of Lord Vishnu, his work is a useless waste of labor, just like the keeping of a cow that does not give milk. Anyone who does not follow the surrendering process but is simply interested in an academic career cannot make any advancement. His profit is only his labor for nothing. If one is expert in the study of the Vedas but does not surrender to a spiritual master or Vishnu, all his cultivation of knowledge is but a waste of time and labor. Hare Krishna. तो ये बहुत बड़ा एक पर्पट है जो प्रभुपाद ने बहुत डिटेल में समझा रहे थे कि जो विद्या है, जो जो हमारा सो कॉल्ड जो मटेरियल नॉलेज है, वो एक्चुअली कुछ हद तक मतलब ये मनुष्य जीवन का वो नहीं हो सकता ना, ये गोल नहीं बन सकता। मतलब जो ना उससे हम भगवान को समझ सकते, ना हम गुरु को समझना, शास्त्र को समझ सकते, है ना। और उससे बता कि माया के द्वारा वो ज्ञान, अगर हम इतना लर्नेट होने के मतलब ये सब जो भौतिक नॉलेज लेने के बाद, हाँ, अगर हम भगवान की निंदा करते हैं ना, भगवान के क्रिटिसाइज करते हैं, भगवान को नहीं समझते, तो हमारा सारा ज्ञान क्या है, वृथा है। वो सारा जो है क्या हो जाता है, उससे सब टाइम हो जाता है। तो इसमें बताया गया कि अगर कोई इंसान वेद भी पढ़ रहा है, अगर कोई इंसान जो है शास्त्र भी पढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है ये दिखाने के लिए, मैं विद्वत्ता दिखाने के लिए, तो भी उनका नॉलेज क्या है, वो ज्ञान क्या है, वो अपूर्ण है, उसका कोई लाभ नहीं है। जब तक न इंसान, जब तक न कोई व्यक्ति इस वेद का नॉलेज लेके, वेद का ज्ञान को ना अपने अपने पे ग्रहण करने के बाद अगर भगवान पे शरणागत नहीं हो रहा है, गुरु पे शरणागति नहीं दिखा रहा है, तो उनका ज्ञान व्यर्थ। तो हमारा कर्तव्य है कि गुरु के प्रति शरणागत होना। अगर किसी के पास बहुत न शिक्षा नहीं है, मतलब जो जो हमारा शिक्षा होता है, जो हम लोग मेटेरियल नॉलेज, जो हम भौतिक शिक्षा लेते हैं, वो सब लेने के बाद भी हमारा सरेंडर नहीं है, तो हमारा शिक्षा वृथा है। अगर किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा वो लर्नेड नहीं है, अनपढ़ भी है, लेकिन वो गुरु के प्रति समर्पण है, तो सारे वेदों का ज्ञान उसके हृदय में क्या प्रकाशित होगा। ये है ना। अल्टीमेट हमें क्या समझना, हमें ये समझना कि हम कौन है और हम कहाँ से आए हैं, हम हमें जाना क्या है, हमारा ड्यूटी क्या है। ये अगर हम समझ जाए, है ना, तो हमें और बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो भौतिक जगत में हम लोग क्या करने आते हैं, भौतिक जगत में अगर हम सोचते हैं कि हमें विद्या अर्जन करना है, बहुत ज्ञान अर्जन करना है, सिर्फ और सिर्फ सेंस एंजॉयमेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे अहंकार को बढ़ाने के लिए, तो हम बहुत बड़ा मूर्ख है। हमारा ज्ञान अगर भगवान को प्राप्ति करने के लिए बाधा है, तो ज्ञान क्या है, असंपूर्ण है। वो ज्ञान क्या है, बस एक ऑब्स्टेकल्स है, एक बाधा है। अगर हम ऐसे ज्ञान ले जिस ज्ञान से हमें शरणागति सिखाते हैं, जिस ज्ञान से हम गुरु के प्रति, भगवान के प्रति शरणागति सिखाते हैं, तो वो ज्ञान क्या है, फलप्रद है, तो वो फ्रुक्टिफाइड होती है। तो ये पिछले हफ्ते में हम लोग पढ़ लिए थे ये वाला पर्पट पूरा, कि हमें शरणागति से ही हमें जीवन का सक्सेस मिल सकता है ना। तभी हम वेदों को समझ सकते। वेदों का अर्थ ही है, वेदों का ज्ञान क्या है, भगवान को समझना, भगवान को किस तरीके से हम सेवा करें, भगवान को किस तरीके से समझे, क्या हमारे कर्तव्य, ये जब हम समझ पाएंगे, तो वही वेदों का असली ज्ञान है ना। तो हमें इसलिए महाप्रभु की ये बताया गया कि वो इंसान महाप्रभु की जैसे निंदा किया ना, उनका सारा ज्ञान खत्म हो गया। अगर हम जितना भी हम जब भी हम भगवान की क्रिटिसाइज करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं या शास्त्र की निंदा करते हैं, तो तभी हमारा सारा जितने हमने ज्ञान अर्जन सब खत्म हो, सब कुछ उसका फल खत्म हो जाते हैं, है ना। और हमारा बुद्धि माया के द्वारा चुराया जाता है। इसलिए हमें बहुत सावधान होना कि हमें अगर कुछ भी हम प्राप्त हुआ ज्ञान, वो ज्ञान हमें भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान को समझना है। अगर आप एक बार भी निंदा के में जुड़ जाएंगे, निंदा करेंगे,
है ना, शक करेंगे उस चीज में तो हमारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, और हम पता नहीं वही माया की तरह परिचालित होंगे, माया की तरह कंट्रोल्ड होने लगेंगे। तो हमें बहुत सावधान होना है। जीवन का सक्सेस तभी मिल पाएंगे जब हम जो है भगवान को और गुरुदेव के प्रति शरणागति होगा, गुरुदेव के अनुसार हम जो सेवा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आगे पढ़िए माता जी। तथापि दंबिका नम्र न होय, यहम तहम प्रभु निंदा हसी से कराय। लेकिन गर्वित छात्र समुदाय ने विनम्रता नहीं दिखाई। इसके विपरीत छात्रों ने हर जगह इस घटना की चर्चा की। हंसते हुए उन्होंने भगवान की आलोचना की। हरे कृष्णा। तो जे कि एक बार उन्होंने निंदा शुरू किया तो माया के तरह उनका सारा ज्ञान खत्म, उसका लाभ जो है ना, विद्या विनयम ददाती बोलते हैं, विद्या जो विनय प्रदान करते हैं। अगर वो विद्या अहंकार बढ़ा रहे तो असली विद्या नहीं है, और वो अहंकार के बस में, और उनका माया द्वारा उनका ज्ञान सारा जो चुराया गया है, और इसलिए वो बढ़ते गया उसकी निंदा। इधर वो उनका मतलब खत्म नहीं हुआ, एक बार बोलने से उनका खत्म नहीं हुआ, वो बोलते गए इधर उधर, सबको बोलने लगे सब चीज, है ना। तो ये करने लगे, और वो इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं भगवान के प्रति, है ना। इस तरीके से होगा। आगे पढ़िए माता जी। एक और विकल्प देखे, एक और विकल्प देखे। तो मुझे थोड़ा नीचे कर दीजिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ थे, इसलिए वे इन विद्यार्थियों की दुर्दशा को समझ सकते थे। इसलिए वे घर पर बैठकर विचार करने लगे कि उन्हें कैसे बचाया जाए। हरे कृष्ण। तो महाप्रभु, देखिए महाप्रभु क्या है, कृपालु है, क्योंकि भगवान परमात्मा को सबके हृदय में वास करते हैं। महाप्रभु को समझ आया कि ये लोग कितना अपराध कर रहे हैं। भगवान से हम द्वेष करके जब धरती में आते हैं इस भौतिक जगत में, तो भगवान कभी भी हमें नहीं छोड़ते। भगवान हमारे साथ ही रहते हैं, और भगवान हमेशा सोचते हैं किस तरीके से इस जीवात्मा का मुक्ति हो, किस तरीके से जीवात्मा उद्धार होकर मेरे पास वापस आए। तो भगवान को लगा कि ये छात्र जो है वो तो अपराध कर रहे, तो इससे उनका मुक्ति नहीं हो पाएगा कभी, है ना, वो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो वो समझ गए। आप महाप्रभु सोच रहे क्या उपाय करे ताकि ये सब लोग इस अपराध से बचे ना। भगवान साधारण इंसान से कैसे अलग है, इसलिए अलग है क्योंकि वो साधारण इंसान में गुस्सा आता है ना, क्योंकि वो दोषों से ना, तीनों तीनों गुणों से क्या है, प्रभावित है। भगवान तीनों गुणों से ऊपर है। तीनों गुणों से प्रभावित होने की वजह से हमें ईर्ष्या, द्वेष, है ना, राग, ये सब का उत्पत्ति होते हैं। और जिसके कारण हम सोचते हैं हमारा ये अपने हमारा शरीर है, और इसके प्रति हमारा एक मिथ्या अहंकार होता है, और उसके वजह से हम किसी के बात को सहन नहीं कर पाते, या बदला का भावनाएं आते हैं, प्रतिहिंसा का भावना आता है। तो भगवान तो इससे ऊपर है, तो इसलिए भगवान, हम इंसान होते तो हम गुस्सा आता नहीं, हम उनको सबक सिखाएंगे नहीं, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन भगवान जो है परम कृपालु है। भगवान सारे जीवात्मा की रक्षा करता है, इसलिए भगवान चाहते हैं कि जीवात्मा कैसे अच्छा हो, तो वो द्वेष नहीं करेंगे कभी, क्योंकि तीनों गुण उससे प्रभाव से बाहर है। तो भगवान सोच रहे हैं अभी कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि इन सारे जीवात्माओं का जो अपराध करे उससे बच जाए, है ना। आगे बढ़िए माता जी। ज्योतोध्यापक और तारम शिष्य गण, धर्मी कर्मी तप निष्ठा निंदक दुर्जन। भगवान ने सोचा, सभी तथाकथित प्रोफेसर और वैज्ञानिक तथा उनके छात्र सामान्यतः धर्म, सकाम कर्म और तपस्या के नियामक सिद्धांतों का पालन करते हैं, फिर भी वे ईश निंदक और दुष्ट हैं। यहाँ भौतिकवादियों का चित्रण है जिन्हें भक्ति सेवा का कोई ज्ञान नहीं है। वे बहुत धार्मिक हो सकते हैं और बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर सकते हैं, या तपस्या कर सकते हैं, लेकिन अगर वे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की निंदा करते हैं तो वे दुष्टों के अलावा कुछ नहीं है। हरि भक्ति शुद्धोदय 3.11 में इसकी पुष्टि की गई है। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जप तपः, अपराणस्येव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। यदि वे भगवान की भक्ति सेवा के ज्ञान से रहित है तो महान राष्ट्रवाद, सकाम कर्म, राजनीतिक या सामाजिक कार्य, विज्ञान या दर्शन सभी मृत शरीर को
सजाने वाले महंगे वस्त्रों की तरह हैं। इन सिद्धांतों का पालन करने वाले व्यक्तियों का एकमात्र अपराध यह है कि वे भक्त नहीं है, वे हमेशा भगवान और उनके भक्तों के प्रति निंदात्मक होते हैं। हरे कृष्ण। तो इसमें बहुत अच्छा बताया जा रहा है कि जो जो सो कॉल्ड नॉलेजेबल पर्सन ना, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, अगर उनमें भक्ति नहीं है तो उनका सारा शिक्षा क्या है, वृथा है। वो बोल रहे हैं इसको मृत शरीर को सजाने के लिए ये शिक्षा है। मृत शरीर को सजाना क्या है, उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो ये है कि वो जो हम लोग सोचते हैं क्यों, इसमें क्या गलतियां हैं, अगर कोई शिक्षा प्राप्त हो गया, कोई शिक्षा है, लेकिन उस शिक्षा में अगर आपका अहंकार बढ़ रहा है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, और दूसरे भगवान के सुप्रीमेसी को हम मानने के लिए मान नहीं पा रहे, दैट्स मीन हम विनयी नहीं है। अगर कोई पर्सन छोटा सा ज्ञान, मतलब कितना ज्ञान है हमारे, भौतिक ज्ञान कितना हम ले सकते हैं। अगर कोई पर्सन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है तो उनको मैकेनिकल का नॉलेज नहीं है या सिविल का नॉलेज नहीं है, वो कुछ ही इतना बड़ा ज्ञान समुद्र में कुछ ही एक पोर्शन को जान पाए, वो भी पूरा नहीं जान पाते, तभी भी लोगों को कितना अहंकार होता है कि someone is ना जाएंगे हम पीएचडी होल्डर, हम प्रोफेसर है ना। तो आपको सोचना चाहिए आप कितने ज्ञान को जानते हो, बहुत छोटा ज्ञान को जानते हो, उसी पे हम बैठे हुए हम सोचते हैं हम तो कंट्रोलर है ना, हम बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है, या हम मानते कि चलो हमारे ऊपर है लेकिन हम भी श्रेष्ठ है। तो ये अहंकार से वजह से इंसान क्या होता है, भ्रम में रहते हैं कि ये भ्रम में ये रहते कि परमानेंट है, ये भ्रम में रहते कि मैंने मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, ये सोच ही नहीं पाते कि मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया, एक अचीव तो किया लेकिन खत्म भी हो जाएगा, ये टेम्पररी है। लेकिन जो वैदिक ज्ञान है, जब वैदिक सिद्धांत के अनुसार लोग चलते, उस ज्ञान के अनुसार भगवान की प्राप्ति जब करते हैं, वो जो अनुभूति है, वो जो जिस स्टेज में वो लोग पहुंच जाते हैं, उस कॉन्शियस के उस विचार के उस धारणा के स्टेज में पहुंच जाते हैं, तब उनको लगता है कि ये भौतिक नॉलेज जो है सब कुछ क्या है, वृथा, मतलब काइंड ऑफ वृथा है, क्योंकि उसका जरूरत है लेकिन उसका एक सर्टेन लिमिट है उसका। लेकिन जो वैदिक ज्ञान है, जो भक्ति है, जो भगवान को जो प्रेम है, उसका कोई लिमिट नहीं है। और उस स्टेज में पहुंचने के बाद इंसान को लगता है कि हाँ, मैं टेम्पररी शरीर में हूँ, या मेरे को परमानेंट जगह पे जाना है। तो हम उस नॉलेज को लेना है, जहाँ सिर्फ नॉलेज लेना है, उसको अनुभव भी करना है कि हम जो उस स्टेज में है जहाँ पर हमें एक संपूर्ण ना क्या शाश्वत जीवन प्राप्त हो, शाश्वत प्रेम प्राप्त हो। एवरीवन इज लुकिंग फॉर लव, है ना। लव, शाश्वत प्रेम किसी को प्राप्त नहीं होता है, किसी को प्राप्त होता है तब प्राप्त होता है जब वो भगवान के शाश्वत जीवन जीते हैं, जब शाश्वत जीवन के लिए प्रयास करते हैं। तो वो प्रयास तभी होगा जब हम असली ज्ञान के अनुसार चलेंगे, असली ज्ञान को प्राप्त करेंगे। नहीं तो वो ही मृत शरीर के समान, मृत शरीर ज्ञान तब तक है जब तक ये शरीर है, वो ज्ञान जो भौतिक ज्ञान है, और शरीर के बाद खत्म, है ना। ठीक है, आगे पढ़ी माता जी। এই শোভা মোরা নিন্দা অপরাধ হইতে আমি না লাইলে भक्ति ना पारे लाइते। यदि मैं उन्हें भक्ति सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं करता तो ईश निंदा का अपराध करने के कारण इनमें से कोई भी व्यक्ति भक्ति सेवा में शामिल नहीं हो पाएगा। हरे कृष्ण। तो महाप्रभु को चिंता हो रहा है, महाप्रभु को लगा कि इनको भक्ति के रास्ते में लाना पड़ेगा, तभी इष्ट निंदा से बचेगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा। तो महाप्रभु देखिए इतना सोच रहे हैं, इसलिए महाप्रभु क्यों भक्ति में आया। अब बहुत से लोग, जब महाप्रभु भगवान जो है जो इतिहास में, हिस्ट्री में बोलते कि चैतन्य महाप्रभु जो एक भक्ति आंदोलन के प्रेरक है, एक नेता है। लेकिन आप शास्त्र पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्यों आया, एक्चुअली भक्ति करना क्यों जरूरी है। आप महाप्रभु के एक प्रकट होने के एक वजह भी है कि हर जो महामंत्र का प्रचार करना है ना, कि भगवान के नाम का प्रचार, कलयुग का जो धर्म है, नाम धर्म है, नाम यज्ञ है, उसको प्रचार करना, यहाँ से पता चलता है।
कि क्यों, जो भगवान परम दयालु है, परम कृपालु है, ये नहीं किसी प्रचार कर रहे, क्यों प्रचार कर रहे हैं, इसके पीछे ये रीजन है कि भगवान को पता है कि अगर भगवत विद्वेष होंगे तो कभी भी मुक्ति नहीं होगा। समझ रहे हैं? एक जीव का परम जो गंतव्य है, जो परम विश्राम की जगह है, वो क्या है? परमात्मा। तो आत्मा का परमाष्ट जगह परमात्मा है, तो परमात्मा के प्रति वो विद्वेष है, और जिस कारण की वजह से धरती में आ गए विद्वेष करके, वही चीज इधर भी कर रहे हैं, तो कैसे मुक्ति हो पाए? और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ेंगे कि एक ही रीजन है कि क्यों जीवात्मा इस धरती में आके भोग रहे, क्योंकि विद्वेष किया भगवान से द्वेष किया, और वही चीज हम इधर भी करेंगे, तो कैसे मुक्ति हो पाएगा? नहीं हो पाएगा फिर तो। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भक्ति से द्वेष खत्म होते हैं, भक्ति से प्रेम। अब द्वेष का अपोजिट प्रेम है, द्वेष और प्रेम एक दूसरे के जो है ऑपोजिट है ना? तो द्वेष जहां रहेगा वहां प्रेम नहीं रहेगा, इसलिए भक्ति के जरिए उस देश को खत्म करके प्रेम को उत्पन्न करना, तभी जो है आप भगवत धाम जाएगा। भगवत धाम में हमें क्या बोलते हैं? व्हाट इज आवर गोल? प्रभुपाद क्या बोलते हैं? व्हाट इज आवर गोल? आवर गोल इज कृष्ण प्रेम, कृष्ण द्वेषी नहीं, कृष्ण प्रेम। दिस इज द मेन रीजन कि भगवान भक्ति सिखाने आए हैं। और किसी में मुक्ति नहीं हो सकता लोगों का, भक्ति से ही मुक्ति हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं। कोई बोले मैं वेद पढ़ लूंगा, अभी महाप्रभु दिखे कैसे खंडन कर रहे हो चीज को, किसी वेद पढ़ने, शास्त्र पढ़ने से नहीं हो पाएगा। सरेंडर कितना जरूरी है वो बोल रहे हैं, और प्रेम का एक पराकाष्ठा, प्रेम का एक लक्षण है सरेंडर। जो प्रेम करते हो सरेंडर करता है ना? आप लोग ये समझ सकते हैं, प्रेम मीन सरेंडर, और उसके सरेंडर का लक्षण है अलग अलग, है ना? प्रेम का लक्षण, सरेंडर का लक्षण कभी मतलब सेम है, ठीक है? तो इसलिए महाप्रभु भक्ति सिखा रहा है प्रेम को प्राप्त करने के लिए। इसलिए ये हमें इस स्टेज में समझ जाना चाहिए कि भक्ति क्यों करेंगे, प्रेम सीखना है भगवान से। जब किसी से प्रेम करे तभी तो आपका होगा। हम बोले भगवान अपना है, अब प्रेम ही नहीं करता, अपना कैसे होगा? तो महाप्रभु इसलिए भक्ति सिखा रहा है, भक्ति के जरिए प्रेम, लविंग। इसलिए महाप्रभुपाद कितना सुंदर इंग्लिश में बोलते ना, लविंग डिवोशनल सर्विस, लविंग ना। इसलिए भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं क्या है? एतम सततयुक्तानम भजतम प्रीतिपूर्वकम। प्रीति प्रेम के साथ जो भजन करता है, भजन करना जरूरी, मतलब भजन करने काफी नहीं है, प्रेम के साथ तेषम सततयुक्तानम। तो ये है प्रेम का लक्षण है कि वो कंटिन्यूटी होता है, उसमें कंटिन्यूअस वो लगे रहते हैं। ठीक, आगे पढ़िए माता जी। নিস্তারিতে আইলাম আমি হইল বিপরীত, এই সব দুর্জনের কেছে হইবে কহিত। मैं समस्त पतितों का उद्धार करने आया हूँ, किंतु अभी तो इसके ठीक विपरीत घटना घटी। इन धूर्तों का किस तरह उद्धार हो सकता है? ये किस तरह लाभान्वित हो सकते हैं? हरे कृष्ण। तो महाप्रभु बोलते मेरे को तो इसको उद्धार करना है, इनको मैं तो शिक्षा के पीछे पड़ा हूँ, मैं ज्ञान। महाप्रभु को देखिए, पहला जीवन के पहले स्टेज में महाप्रभु जब थे, जब प्रचार नहीं कर रहे थे, उस समय वेदों का अध्ययन कराते थे। उसके बाद जब लगे तो ज्ञान से इनका कुछ हो ही नहीं रहा है, इनको उल्टा हो रहा है, उल्टा वो विद्वेषी हो रहा है, तो मैं उनको उद्धार करने में इनको क्यों इस सब चीज में फंसाऊं मैं? ज्ञान वन छोड़ो, आप भक्ति में लगो, क्योंकि भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति के दो बेटे हैं ना, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा। अगर कोई इंसान भक्ति कर रहे तो उनके अंदर ज्ञान आएगा, और कैसे पता चलेगा उनके अंदर ज्ञान है? उसका लक्षण है को विनम्रता, उसके लक्षण है सरेंडर, उसके लक्ष्य वो सारे चीज के प्रति उनका अनीहा, उनके प्रति उनका टेस्ट नहीं है, जो चीज कृष्ण भक्ति के विरोधी है। उनको टेस्ट खत्म हो जाएगा उस चीज में। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती टेस्ट खत्म हो, अपने आप लगेगा नहीं ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, ये कृष्ण को संतुष्ट नहीं, गुरुदेव को संतुष्ट नहीं, भक्तों को अच्छा नहीं लगता है, इसको नहीं करेंगे। इसको मतलब उसके लिए आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कोई इंसान बोला मुझे प्रयास करना है, नशा मुक्ति केंद्र होते हैं ना, कि प्रयास करते हो नशे से बाहर निकलने, क्योंकि ये उनको पता ही नहीं कि नशा मुक्ति तभी हो पाएगा, उसके ऊपर कुछ नशा मिले तभी तो नशा मुक्ति होगा। आप जबरदस्ती कोई ऐसी चीज मेडिकेशन कर रहे हैं, ऐसे कुछ दे रहे हैं
जिससे कुछ समय तक तो छूट जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर लत लग जाएगा। तो आपको कुछ हायर देना पड़ेगा, कुछ हायर टेस्ट देना पड़ेगा, उससे ऊपर नशा देना पड़ेगा। वैसे भक्ति अपने आप ऐसे एक नशा है जो ऑटोमेटिकली मतलब मटेरियल चीजों से वो ऊपर है, क्योंकि तो ये आध्यात्मिक जगत की चीज है, तो उसमें जब नशा लगता है तो इस भौतिक जगत की नशा से मुक्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की नशा हो, अगर यही हमारा मतलब पैरामीटर्स है, अगर इस सब चेक कर सकते हो, नहीं एक आपके पास एक गेज है जिस सब चेक कर सकते हैं कि क्या मैं सच में भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। कई लोग पूछते हैं मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, उसी जगह पे कैसे पता चलेगा? अगर उस इंसान के अंदर वैराग्य आ रहे हैं, अगर उस इंसान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है भगवान के प्रति, तो इसलिए महाप्रभु बता रहे कि मैं तो ज्ञान दे रहा था पहले, इससे काम नहीं हो रहा है, मैं भक्ति सिखाऊंगा तो अपने आप ज्ञान हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु बोले मैं तो भक्ति सिखाना है बस। भक्ति सीखेंगे तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। और वो ज्ञान कौन सा है? जो हमारा, जो हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या कहता है, आगे बढ़ा, तो वो ज्ञान। ठीक है, आगे पढ़ी माता जी। আমাকে প্রণতি করে হয় পাপসয়, তবে সে ইহারে ভক্তি লয়াইলে লয়। यदि ये धूर्त मुझे नमस्कार करें तो इनके सारे पापों के फल विनष्ट हो जाएंगे, फिर यदि मैं इन्हें प्रेरित करूं तो ये भक्ति करने लगेंगे। हरे कृष्णा। तो ये बोल रहे महाप्रभु की प्रणाम करने, तो भगवान को प्रणाम करने। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, एक श्लोक में भगवान ये नहीं बोलते कि मुझे प्रणाम करो, भगवत गीता में बोलते हैं, है ना? तो भगवान ये बोल रहे कि भगवान को प्रणाम करने से पाप क्षय हो जाती है, इसलिए हमें प्रणाम करना कितना जरूरी। इसलिए बोल रहे, इसलिए तो महाप्रभु संन्यास लेके, उस समय संन्यास को भगवान के स्वरूप माना जाता था, जो कि सब संन्यास को प्रणाम करते थे। तो महाप्रभु इसलिए संन्यास लिया। ये आगे बताएंगे कि संन्यास क्यों लिया, इसके पीछे बहुत रीजन। ऐसे नहीं महाप्रभु को मन हुआ, महाप्रभु देख रहे सब लोग मेरे निंदा कर रहे हैं और उससे उनका पाप हो रहा है, उसको जो इस भौतिक जगत में उनको मुक्ति तो कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए उनको लगा कि अगर मैं इस स्टेज में चला जाऊं, इस जगह इस प्लेटफॉर्म में चला जाऊं कि लोग, साधारण इंसान मुझे प्रणाम करे, और उससे उनका पाप क्षय होगा। तो मन मन भव मद भक्त मज्जाजी मम नमस्कुरु। तो ये भगवान बोल, अरे एप्लीकेबल है हर जगह पे, इसलिए हमें प्रणाम करना बहुत जरूरी है। वैष्णवों को भी प्रणाम करना जरूरी है। प्रणाम का बहुत, नमस्कार करना जो प्रणाम होता है उसका बहुत इफेक्ट है। दंडवत प्रणाम करने से बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त हो जाता है। भगवान को प्रणाम, जो साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उससे हमारा बहुत सारे पाप खत्म तो होते हैं, ऊपर सुकृति ये भी मिलते हैं। तो ये जरूरी है। तो ये महाप्रभु ये बोल रहे कि अगर ये धूर्त जगह प्रणाम भी करेंगे मुझसे, तभी वो उनका पाप क्षय हो जाएगा। आगे पढ़िए माता जी, एक श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको रखेंगे आज, है ना? मोरे निंदा करे जे ना करे नमस्कार, এই সব জীবেরে অবশ্য করিব উদ্ধার। मुझे इन सभी पतितों का अवश्य उद्धार करना चाहिए जो मेरी निंदा करते हैं और मुझे नमस्कार नहीं करते। हरे कृष्णा। तो महाप्रभु बोल रहे हैं मुझे सबको उद्धार करना है, जो मुझे नमस्कार भी नहीं करते। आप क्या, इसलिए आप सोचिए महाप्रभु बताना चाह रहे कि मुझे संन्यास क्यों लेना है। तो सभी लोग प्रणाम करेंगे उनको, जो उनको पसंद करे ना करे, क्योंकि वो कस्टम है सन्यासी को प्रणाम करना, है ना? तो इसलिए महाप्रभु बोले मैं कैसे भी लोग धूर्त हो, खराब हो, सब मुझे प्रणाम करेंगे ना, उद्धार हो जाएंगे वो। तो ये है सार। तो हमें इसको समझना, हमें बहुत कुछ इसमें, इसे चैतन्य चरितामृत में भक्ति के लिए बहुत एक ऐसे ग्रंथ है जहां पढ़ के हम भक्ति के असली अर्थ समझ पाते हैं। महाप्रभु सिखा रहे, आप बताए ना महाप्रभु सिखा रहे क्या होना चाहिए। आप बोल रहे महाप्रभु भगवान की प्रेम नहीं देते, भक्त प्रेम देते ना, तो महाप्रभु को भक्त बनना पड़ा। आप देखिए चैतन्य चैतामृत क्यों श्रीमद् भागवत से, भागवती है कि भगवान के बारे में चर्चा हो रहा है, लेकिन फिर भी चैतन्य चैतामृत क्यों भक्तों के लिए विशेष है? क्योंकि वहां पे भक्त सीखते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे 18,000 श्लोक में कहीं भी ये नहीं लिखा किस तरीके से मुझे प्राप्त करोगे, या ना,
किस तरीके से, क्या तरीका होना चाहिए। ये तो बोल रहे कि मुझे प्राप्त आ जाओ, तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, तो छोड़े कैसे, ये नहीं बोल रहे। क्या करना चाहिए भक्तों को, क्या उपाय है, तो महाप्रभु से करे ऐसे छोड़ना है, ये करना है, ये भक्ति है, दिस इज कॉल्ड भक्ति, ये प्रोसेस है भक्ति के। आ रहा है समझ। तो इस तरीके से तो महाप्रभु, इसलिए इस जगह पे महाप्रभु का संन्यास का कारण बताया जा रहा है कि जो भगवत विद्वेषी होते हैं, जो कितने भी वेद पढ़ लिया, कितने भी सरेंडर जो नहीं है, जो गुरु के प्रति, भगवान के प्रति सरेंडर नहीं, वो बहुत बड़ा अपराधी है। तो हमें इस चरित्र को अपने आप में ढालना है, इस चरित्र को अपने ऊपर लाना है कि मैं कभी भी किसी भी दशा में भगवान विद्वेषी ना हो। कभी कभी भगवान को तो नहीं, भगवान तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, ये ना बोले, कभी भी ना बोले, है ना। गुरुदेव की कभी गुरुदेव की कमी नहीं देखना चाहिए। गुरुदेव ने मुझे ऐसे कर दिया, गुरुदेव ने मुझे पोजीशन नहीं दिया गुरुदेव ने मुझे इस मंदिर का प्रेसिडेंट नहीं बनाया। गुरुदेव चाहते कितना कुछ कर सकते, उन्होंने किया नहीं। तो ऐसे नहीं है, गुरुदेव को पता है कितना हमें चाहिए, हम तो मूर्ख है। उनको पता है कि हमें कितना पोजीशन चाहिए, कितना क्या सेवा चाहिए, उनको पता है। और उसी रोग क्योंकि भगवान से होके आ रहा है वो सारे इंस्ट्रक्शन। इसलिए गुरु के प्रति कभी विद्वेष, वो बहुत बड़ा अपराध है। 10 नंबर अपराध में वो आता है ना कि गुरु को साधारण इंसान, वो कभी नहीं साधारण नहीं समझना चाहिए। उनको पता है तुम्हें कितना जरूरी है। भौतिक जगत में जो भौतिक अचीवमेंट होता है वो बहुत टेम्पररी है, और उसके लिए अगर गुरुदेव के भगवान के पास जाते तो हमारे जैसा मूर्ख और कोई नहीं होगा। ये तो कुछ समय के है, तो इसलिए भक्ति सीखेंगे, हम भक्ति सीखेंगे तो सबसे छुटकारा मिल जाएंगे। ये सब जो फालतू की हम ना क्या डिजायर करते हैं, महत्वाकांक्षा है, उससे बच जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जब हम जितने आचरण करेंगे, सिर्फ सुनना नहीं है, हमें उसका आचरण भी करना है जीवन में, तब जाके वो ठीक होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो प्रभु जी, माता जी पूछ सकते हैं, नहीं तो आज हमें थोड़ी विराम देते हैं। हरे कृष्ण। चैतन्य हरे चेतामृत कृष्ण। की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतना सुंदर हम लोग को बताने के लिए आपको बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं बारी बारी से। प्रभु जी यहाँ जो बता रहे थे कि भक्ति करने से जो है ज्ञान और वैराग्य दोनों प्राप्त हो जाते हैं, और केवल ज्ञान से जो है वो नहीं हो पाता है। तो प्रभु जी शायद इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, ज्ञान बोलते इधर वो ज्ञान है जो हमें भगवान के प्रति अग्रसर होने में सहायता करता है, भगवान के प्रति एक स्टेप बढ़ाने में। जो भौतिक ज्ञान होता है वो नहीं है। भौतिक ज्ञान हमें अहंकार को बढ़ाते हैं। भौतिक ज्ञान सूक्ष्म होता है और टेम्पररी होती है ना। इसलिए और वैराग्य कौन सी, वैराग्य युक्त वैराग्य की बात किया जा रहा है। वैराग्य मतलब वो वैराग्य जो चीज हमारा भगवान के भक्ति में बाधा है उसको हमें छोड़ना है, और जो सहायक है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। दिस इज कॉल्ड द वैराग्य। ज्ञान जो हमें विनम्र बनाते हैं, ज्ञान जो हमें भगवान को जानने में सहायता करते हैं, भक्ति को समझने में सहायता करते हैं, वो ज्ञान है। वो कभी खत्म नहीं होता, वो चलते रहते जब तक जीवात्मा मुक्त नहीं हो पाते शरीर से, है ना। इस भौतिक शरीर से मुक्त नहीं हो पाता, आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त नहीं करते, भगवत धाम नहीं, जब तक वो रहता है, मतलब वो कभी खत्म नहीं होता, मतलब हमेशा रह जाएगा आपके साथ। वैसे क्रेडिट है आपका, वो एक बार क्रेडिटेड हो जाता तो डेबिट नहीं होता। ठीक है ना। वो आगे बढ़ता, वो प्लेटफॉर्म है काइंड ऑफ, वो बढ़ता जाता है, वो खत्म नहीं होता कभी भी। अब मतलब जो भी आपने भक्ति के लिए जो ज्ञान आपने प्राप्त किया, वो कभी भी आत्मा से अलग नहीं होता, वो रह जाता है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आई थिंक और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम लोग सब मिलके जी प्रभु जी आप पूछ सकते हैं जितना प्रभु जी। हरे कृष्ण। कुछ आपका माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्ण, आप माइक म्यूट है। हाँ बताइए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी अभी जो आप बता रहे थे प्रभु जी की, जैसे चैतन्य चरितामृत में भगवान ने भगवत गीता में जो बताया कि
भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन उसमें प्रोसेस नहीं है कि कैसे प्राप्त करना है। उसमें ये तो बता दिया है कि सब धर्म मतलब प्राप्त करना है, लेकिन उसमें प्रोसेस नहीं है। तो क्या प्रोसेस मतलब वो कंप्लीट क्या कहें उसको कि उसको नहीं, भगवान भगवत गीता में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि व्हाट शुड यू डू, क्या हमें करना चाहिए। चैतन्य चैतन्य में भगवान आचरण करके दिखा रहे हैं कि कैसे करना है। जी प्रभु जी। है ना, भगवान खुद आचरण कर रहे हैं भक्तों के जैसा, कि भक्तों को क्या, आप चैतन्य चैतन्य में देखेंगे कि उधर बहुत सारे भक्त हैं भगवान के साथ, उनका पार्षद है, वो भी कुछ ना कुछ ऐसे कुछ कर रहे हैं जो हमारे लिए जो है मतलब समझने वाला चीज है कि वो क्या इस तरीके से उसको कर रहे हैं। किसी निंदा नहीं करना है, निंदा करने से हमारा क्या होता है महाप्रभु बता रहे हैं, वो लीला के जरिए दिखा रहे हैं कि निंदा करने से उनका सारे जो खत्म हो जाता है, सारा सुकृति खत्म हो जाता है। भगवत गीता में भगवान ने नहीं बोला निंदा करना, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरण, बोले आप मुझे भी शरण लो। शरण शरणागति कैसे करे वो चैतन्य चैतन्य बता रहे। वे क्षण अब रघुनाथ दास गोस्वामी देखिए, उनके साथ वो कैसे शरणागत है, किस तरह की शरणागति किया। सारे जो वैष्णव है, जो है आपके रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी, बोले शरणागत कैसे होते हैं वो दिखा रहे उधर। लेकिन भगवान ने बोल दिया, इंस्ट्रक्शन दिया भगवत गीता में कि सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, मुझ पे शरण करो। कैसे, ये चैतन्य चैतन्य बता रहे इस तरीके से शरणागत होता है। वो अच्छे से समझ आते हैं हम लोगों को, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच जी। हम लोग सभी मिलकर के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी। और आपसे धन्यवाद, आप लोग रेगुलर यहाँ पे आते हैं, साथ में यहाँ पर मंगल आरती जपा और भाव प्रदर्शन करते हैं, भक्तों के बारे में श्रवण करते हैं, विशेष अवसर पर हम लोग विशेष श्रवण करते हैं। इस तरह से आप लोग यहाँ पे आते रहिए, और भी कोई डिवोटी आपके संपर्क में है तो उनको भी आने के लिए यहाँ पे आमंत्रित कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज के विराम देंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, संत श्री चैतन्य की जय।